अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज की खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सीएम रेवंत रेड्डी ने सियासत से क़त्ए नज़र हैदराबाद की तरक्की के लिए KCR की तारीफ। CII तेलंगाना की तरफ से तालीम, हुनरमंदी की तरक्की, कारोबारी मौक़े के मौजू पर मुनक़्क़दा कॉन्फ्रेंस से किया खिताब। वज़ीर ख़ारजा जयशंकर रूस में फंसे 3 हिंदुस्तानियों को बचाने के करे इक़दामात। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की अपील। कहा, एक एजेंट ने धोखा देकर तीनों को आर्मी सिक्योरिटी हेल्पर के तौर पर भेजा था। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने की कांग्रेस पर तनकीद। पूछा, कांग्रेस हुकूमत 6 जमानतों को कब से करेगी नाफिज। हैदराबाद रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने किया हल्के असम्बली अहमदपुरा का दौरा। 2 करोड़ 35 लाख रुपए के MP फंड से मुख्तलिफ तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन के ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। तकरीब में डिप्टी CM भट्टी विक्रमार्का, कांग्रेस अरकान असेंबली, मुशीर तेलंगाना हुकूमत मोहम्मद अली शब्बीर के अलावा दीगर ने की शिरकत। स्पेशल उर्दू DSC, मेगा DSC मुनक्किद करने का मुतालबा। उर्दू मीडियम के ट्रेंड असातिज़ा ने डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन के दफ्तर पर किया एहतजाज। और अब खबरों की तफसील। CM रेवंत रेड्डी ने कहा कि सियासत से ख़त्ते नज़र KCR ने हैदराबाद की तरक्की की है। रेवंत रेड्डी ने CII तेलंगाना की तरफ से होटल वेस्टिन में तालीम, हुनरमंदी की तरक्की, कारोबारी मौक़े के मौजू पर मुनक़्क़दा एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत करते हुए खिताब किया। उन्होंने कहा कि KCR से पहले वज़राए आला YS राजशेखर रेड्डी और चंद्रबाबू ने भी हैदराबाद को तरक्की दी। CM ने वाज़ेह किया कि उनकी पॉलिसी तेलंगाना को दुनिया के ममालिक के साथ मुकाबला करने की है। कांग्रेस हुकूमत सरमायाकारों और कारोबारियों की हर तरह से हिमायत करती है। उन्होंने वाज़ेह किया कि वो हैदराबाद शहर की तरक्की के लिए साबिक़ा हुक्मरानों के अच्छे फ़ैसलों को जारी रखेंगे। CM ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना में तालीम और रोज़गार के मौक़े पैदा करने में CII के साथ आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि 2000 करोड़ रुपए से 64 ITI को हुनरमंदी के फ़रोग़ के मराकज़ के तौर पर तैयार किया जाएगा। మా ప్రభుత్వం యొక్క ఆలోచన గత ప్రభుత్వాలు లేదా గతంలో నాయకత్వం వహించిన నాయకులు చంద్రబాబు నాయుడు గారు కావచ్చు, డాక్టర్ YS రాజశేఖర రెడ్డి గారు కావచ్చు, తర్వాత చంద్రశేఖరరావు గారు కావచ్చు, ముఖ్యమంత్రులుగా రాష్ట్ర అభివృద్ధిలో ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ నగర అభివృద్ధిలో వారు చేసిన ప్రయత్నాలు మంచివి ఏమున్నా వాటిని కొనసాగించడానికి మా ప్రభుత్వానికి ఎలాంటి భేషజాలు లేవు. చంద్రబాబు నాయుడు గారు గతంలో నేదురుమల్లి జనార్దన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా, రాజీవ్ గాంధీ గారు ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు మొట్టమొదట ఈ దేశానికి కంప్యూటర్ని పరిచయం చేసి హైదరాబాద్లో మాదాపూర్లో హైటెక్ సిటీకి మొట్టమొదట ఫౌండేషన్ స్టోన్ లే చేయడం జరిగింది 1993. ఆ తర్వాత కాలక్రమేణా అది ఆగిపోయినా మళ్ళీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు వచ్చి IT ఇండస్ట్రీ మనకు ఎంప్లాయ్మెంట్తో పాటు ఈ రాష్ట్రం యొక్క ఎకానమీని నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్ళడానికి ఉపయోగపడుతుందని వారు ఆలోచన చేసి ప్రపంచ దేశాల్లో ఉన్న చాలా IT కంపెనీలను హైదరాబాద్ నగరానికి తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం చేశారు. వారి తర్వాత ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన రాజశేఖర రెడ్డి గారు కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారితో ఉన్న రాజకీయ సిద్ధాంతపరమైన విభేదాలే తప్ప అభివృద్ధిలో ఎలాంటి విభేదాలు లేవు అని చెప్పి హైటెక్ సిటీ విషయంలో కానీ, ఔటర్ రింగ్ రోడ్ విషయంలో కానీ, అంతర్జాతీయ ఎయిర్పోర్ట్ విషయంలో కానీ, హైదరాబాద్లో మెట్రో రైల్ విషయంలో కానీ, హైదరాబాద్ నగరానికి కృష్ణానది, గోదావరి నది జలాలను తీసుకురావడం విషయంలో కానీ వారిద్దరు ఎక్కడ కూడా భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేయలే. ఆ రోజు ప్రణాళికలు రచించిన వాటిని ఇంకా వేగంగా ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికే వారు కృషి చేసిండ్రు. దాంతోనే హైదరాబాదు నగరానికి ప్రపంచ చిత్రపటంలో మనకు ఒక స్థానం కలిగింది. తద్వారా ప్రపంచంలో ఉండే IT ఇండస్ట్రీ అండ్ ఫార్మా ఇండస్ట్రీ
ఈరోజు ఫార్మాలో 5 కంపెనీలు వ్యాక్సిన్ ఉత్పత్తి చేసే సంస్థలు భారతదేశంలో ఉంటే 5లో 4 హైదరాబాద్ నగరంలోనే ఉన్నాయి. ఒక్కటి మాత్రమే పూణేలో ఉంది సిరం. సో ఈరోజు ఐటీ ప్రోడక్ట్స్లో ఆల్మోస్ట్ మన దేశంలో ఉత్పత్తి అయ్యే దాంట్లో 33% మనం తెలంగాణ రాష్ట్రమే ఉత్పత్తి చేస్తుందంటే కూడా ఇది మనకు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఒక గర్వకారణం. అయితే ఫార్మా ఇండస్ట్రీ ఎందుకు హైదరాబాద్లో ఇంత అభివృద్ధి జరగడానికి, ఫార్మా ఇండస్ట్రీలో పెట్టుబడులు రావడానికి కారణం చాలామంది కాలక్రమేణా మర్చిపోయారు. 1965లోనే శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ గారు ఈ రాష్ట్రానికి హైదరాబాద్ నగరంలో ఐడిపిఎల్ సంస్థను ఇక్కడ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇవ్వడం వల్ల, ఇక్కడ ప్రారంభించడం వల్ల 65లో ప్రారంభించిన ఐడిపిఎల్లో చేసిన చాలామంది సైంటిస్టులు కావచ్చు, ఇతర ఉద్యోగస్తులు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్తో బయటకు వచ్చి ఫార్మా ఇండస్ట్రీని స్టార్ట్ చేయడం వల్ల ఈరోజు దేశంలోనే ప్రపంచంతోనే ఫార్మా ఇండస్ట్రీలో మనం పోటీ పడగలిగినాము. ఆనాడు శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ గారు విధానపరమైన నిర్ణయం తీసుకొని హైదరాబాద్ నగరంలో ఐడిపిఎల్ని ప్రారంభించారు కాబట్టే మనం లీడ్ పార్ట్నర్స్ మైన ఫార్మా ఇండస్ట్రీలో. सदर मजलिस व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर से 3 हिंदुस्तानियों को बचाने की अपील की, जिनमें से एक हैदराबाद से ताल्लुक़ रखता है, जो मुबैना तौर पर रूस में फंसे हुए थे और रूस यूक्रेन की जारी जंग में लड़ने पर मजबूर हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हिंदुस्तानियों को एक एजेंट ने धोखा दिया और वहां आर्मी सिक्योरिटी हेल्पर के तौर पर काम देने का वादा किया। असदुद्दीन ओवैसी ने वज़ीर ख़ारजा की तवज्जो दिलाते हुए कहा कि इन हिंदुस्तानियों की जान खतरे में है और उनके अहले खाना परेशान हैं। सदर मजलिस ने इस ज़िमन में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट भी किया है। बता दें कि ये मामला उस वक्त सामने आया जब हैदराबाद के एक मुतासरा नौजवान के अहले खाना ने असदुद्दीन ओवैसी से रब्ता किया। गौरतलब है कि गुज़िश्ता महीने हैदराबाद MP असदुद्दीन ओवैसी ने भी वज़ीर ख़ारजा जयशंकर और मॉस्को में हिंदुस्तानी सिफारत खाने को उनकी मदाखलत के लिए ख़त लिखा था। देश के 12 के करीब लड़के जिनको धोखा देकर, नौकरी का धोखा देकर इनको रशिया लेकर गए और वहाँ पर एजेंट्स ने इनको कहा कि सिक्योरिटी में काम करना है, बिल्डिंग की सिक्योरिटी में, और उसके बाद इनको धोखा देकर ले जाकर वॉर फ्रंट पर रशिया यूक्रेन की जहाँ जंग हो रही है वहाँ पर इनको लेकर चले गए। और इसमें तेलंगाना के 2 लड़के हैं, कर्नाटका गुलबर्गा के 3 लड़के हैं, गुजरात का एक लड़का है हेमल अश्विन भाई, कश्मीर के 2 हैं और काशगंज उत्तर प्रदेश का एक है। इन पीड़ित परिवार के ज़िम्मेदारों ने मुझसे मुलाकात की तो मैंने दिसंबर के महीने में हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर जनाब जयशंकर साहब को लेटर लिखा। फिर हमारे भारत के जो एम्बेसडर रशिया में हैं उनको मैंने लेटर लिखा और इनके फैमिलीज़ बहुत परेशान हैं। और जो एजेंट्स हैं, इन एजेंट्स ने, एक एजेंट तो बैठा हुआ है दुबई में और उसका नाम है फैसल ख़ान और बाबा व्लॉग्स के नाम से वो एक चलाता है। फिर एक सूफियान है, ये मुंबई का है, और एक पूजा है, ये भी मुंबई की है। इन तीनों ने इन बेरोज़गार नौजवानों की बेरोज़गारी का फ़ायदा उठाकर इनको धोखा देकर रशिया भिजाकर इनको वहाँ पर यूक्रेन की जंग के मैदान में पहुँचा दिया। और जो इंडिया के एजेंट रशिया में है, रमेश उसका नाम है और एक मोइन है। तो मैं भारत सरकार से, ख़ास तौर से हमारे देश के वज़ीर आज़म जनाब मोदी साहब से, हमारे फॉरेन मिनिस्टर जनाब जयशंकर साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो रशिया की हुकूमत से बातचीत करके इन 12 नौजवानों को सेफली वापस भारत को बुलाएं। इनके परिवार के लोग बहुत परेशान हैं। उन लड़कों ने अपना वीडियो भी जारी किया कि कैसे उन पर कई मरतबा जंग के मैदान में उनको छोड़ दिया गया, फायरिंग हुई उनके ऊपर, और उसमें से एक उनके साथी जो लड़का था उसकी हत्या भी हो गई, उसका कत्ल हो गया। तो ये उनके परिवार बहुत परेशान है और आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते उनके माँ बाप, उनके रिश्तेदार
किस तरह से कर्ब से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि भारत सरकार फ़ौरन अपने असर और रसूखात को इस्तेमाल करते हुए रशिया की गवर्नमेंट से कहेंगे और इन नौजवानों को सेफली बहिफाजत भारत को लेकर आएंगे। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कांग्रेस को अपनी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी नहीं जानती कि उनका वजीर आज़म का उम्मीदवार कौन है। उन्होंने सवाल किया कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से दी गई 6 जमानतों को कब से नाफिज किया जाएगा। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत के रवैये पर तनकीद करते हुए कहा कि गोया 6 जमानतें पूरी भी होंगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आवाम की मुखालिफत अभी शुरू हुई है। किशन रेड्डी ने मुतालबा किया कि दी गई यकीन दहानियों के मुताबिक जमानतों पर अमल किया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि वादों की तकमील के लिए तहरीक चलाएंगे। కాంగ్రెస్ పార్టీని మరోసారి భూస్థాపితం చేస్తారు. ఉన్నటువంటి 40 సీట్లు కూడా వచ్చే అవకాశం కాంగ్రెస్ పార్టీకి లేదు. కాబట్టి దేశంలో నరేంద్ర మోడీ గారు అద్భుతమైనటువంటి పరిపాలన, దేశానికి దేశ భవిష్యత్తుకు మన పిల్లల భవిష్యత్తుకు ఉపయోగపడేటువంటి విధానపర నిర్ణయాలు, దేశ గౌరవాన్ని పెంచే విధంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారతీయులన్నా భారతదేశమన్నా కూడా మరి గౌరవం పెరిగే విధంగా చర్యలు, ఒక పేదవాడింట్లో టాయిలెట్ నుంచి మొదలు పెడితే ఒక పేదవాడింట్లో తినడానికి కావాల్సినటువంటి 3 బియ్యం వరకు, ఒక రైతుకు విద్యుత్ కొరత లేకుండా, ఎరువుల కొరత లేకుండా ప్రధానమంత్రి నిధులు కూడా సహకరిస్తూ 3 పైసలు బ్యాంక్ అకౌంట్ లో ఇస్తున్నటువంటి పరిస్థితి. 4 కోట్ల పైగా పేదవాళ్ళకి ఇల్లు కట్టినటువంటి పరిస్థితి. కాబట్టి అన్ని రకాలుగా ఈరోజు నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం అద్భుతమైనటువంటి పరిపాలన అందిస్తా ఉన్నది. అన్ని వర్గాల ప్రజల ఆదరాభిమానాలను, విశ్వాసం చొరగొన్నది. అన్ని వర్గాల ప్రజలకు మోడీ అంటే, మోడీ నాయకత్వం అంటే, బీజేపీ ప్రభుత్వం అంటే నమ్మకం ఏర్పడింది. వాళ్ళు దేశం కోసం పనిచేస్తారు, దేశ గౌరవాన్ని పెంచే విధంగా పనిచేస్తారు, దేశ ప్రజల సంక్షేమం కోసం పనిచేస్తారు, దేశ అభివృద్ధి కోసం పనిచేస్తారనేటువంటి విశ్వాసం ఈరోజు 9 సంవత్సరాల తర్వాత మరింత నిరుణీకృతమైంది. రోజు రోజుకు ఆరోగ్యాలు పెరుగుతూ ఉన్నాయి. వచ్చే పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో కూడా తెలంగాణ నుంచి కూడా మెజార్టీ సీట్లు పోటీ చేస్తాం. ఏ పార్టీతో పొత్తు లేదు. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर और हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज बरोज़ चारशंबा हल्का असम्बली याकूतपुरा में MP फंड से मजीद 2 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत से तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्का याकूतपुरा के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा किया और सीवरेज लाइनों के कामों का आगाज़ किया। इस दौरान MLC मिर्ज़ा रहमत बेग, MLA जाफर हुसैन मिराज के अलावा मुतल्लिक़ा कॉरपोरेटर्स, इब्तदाई सुदूर मोतमदीन, सरगर्म कारकुन और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने आज तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन के ओहदे का जायज़ा हासिल कर लिया। इस मौके पर वक्फ बोर्ड के दफ्तर वाक़ हज हाउस नामपल्ली में मुनक़्क़िदा तकरीब में डिप्टी CM भट्टी विक्रमार्का, कांग्रेस अरकान असेंबली विवेक और विनोद के अलावा MLC वेंकट बालमूर, मुशीर तेलंगाना हुकूमत मोहम्मद अली शब्बीर व दीगर मौजूद थे। वक्फ बोर्ड चेयरमैन के ओहदे का जायज़ा हासिल करने के बाद सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वक्फ इमलाक मिल्लत इस्लामिया का बड़ा असासा है और उसकी हिफाजत तमाम मुसलमानों की जिम्मेदारी है। वक्फ अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। पिछले 16 तारीख को वक्फ बोर्ड के अरकान की जानिब से मुझे मुत्तफ़िक़ा तौर पर स्टेट वक्फ बोर्ड का चेयरमैन मुंतखब किया गया। उसके लिए मैं फिर एक बार तमाम अरकान वक्फ बोर्ड को, मैं बोर्ड के तमाम मेंबरान को मैं बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और 25 साल जो मेरे सियासी
ज़िंदगी थी जिसमें NSUI, यूथ कांग्रेस और सीनियर कांग्रेस में मैं 25 साल से जो खिदमत पार्टी के लिए किया हूँ, उसको नज़र रखते हुए पार्टी ने मुझे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। ये मेरे लिए ओहदा नहीं है, ये मेरे लिए जिम्मेदारी है। इंशाअल्लाह इसके साथ पूरी इंसाफ करने की कोशिश करूँगा और एक साफ़ सुथरा माहौल बनाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैं हम पे तो बहुत कुछ है, लेकिन आमदनी का ज़रिया दिन ब दिन घटता जा रहा है, तो किस तरीके से वक्फ बोर्ड की आमदनी को बढ़ाए और वो आमदनी को किस तरीके के हमारे कौम की फलाह बहबूदी के लिए खर्च करें, हम उसके ऊपर ध्यान देंगे। मैं इसी हर डिपार्टमेंट के लोगों को बुलाकर मैं रिव्यू करूंगा कि किस तरीके से इसकी आमदनी बढ़ाया जाए, किस तरीके से जो इंक्रोचमेंट्स हो उसको ख़त्म किया जाए, किस तरीके से कोर्ट के पेंडिंग केसेस को किया जाए। ये सब हम हुकूमत को कॉन्फिडेंस में लेते हुए तमाम मेंबरान की मशवरों से, मेंबरान की मदद से, मेंबरान की ताउन से हम एक अच्छा बोर्ड के तरीके से हम काम करेंगे और आने वाले दिनों में आने वाले नस्लों के लिए, हमारे आने वाले जो हमारे जानशीन रहेंगे हमारे बाद, उनके लिए हम एक अच्छी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे जिसमें लोग आगे ये बोर्ड को और ये टेन्योर को लोग याद रखेंगे। तमाम लोगों का, ख़ासतौर पर कांग्रेस पार्टी के मेरे कायदीन का, वर्कर्स का और आप तमाम मीडिया वालों का और तमाम कौम के सभी लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और मैं आप सभी लोगों से ये दुआगो हूँ कि आप सब लोग मेरी मदद करेंगे। एक साफ़ सुथरा माहौल अपन बनाने के लिए आप लोग हमारे साथ ताउन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आदिलाबाद कांग्रेस अक़लियती कायदीन के एक वफ़द ने तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी से मुलाकात करते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश की। नामपल्ली हज हाउस में वाक़ वक्फ बोर्ड दफ्तर पहुँचने वाले इस वफ़द में अक़लियती कायदीन मोहम्मद अब्दुल खालिक अल मारूफ जॉन्टी, सैयद शाह राशिदुल हक, एम शकील, सैयद शाहिद अली, मोहम्मद रफ़ीक, अब्दुल रहीम, शेख कलीम, अमजद खान व दीगर मौजूद थे। उर्दू मीडियम के ट्रेंड असातिज़ा ने आज स्पेशल उर्दू DSC मेगा DSC मुनक्किद करने का मुतालबा करते हुए डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन के दफ्तर पहुंचकर एहतजाज किया। इस मौके पर उनका कहना था कि कांग्रेस हुकूमत ने मेगा उर्दू DSC का वादा किया था। पिछले कई सालों से उर्दू मीडियम टेट क्वालिफाइड असातिज़ा से नाइंसाफ़ी की जा रही है। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से बहुत सी उम्मीदें जाहिर की। ऑफिस ऑफ कमिश्नर एंड डायरेक्टर एजुकेशन पहुंच गए हैं, तो हम लोग का ये डिमांड और इशू ये है कि मीडिया रिसोर्सेज से, ऑफिशियल अपडेट से, ट्वीट से और अपने चीफ मिनिस्टर रेवंत सर के स्टेटमेंट से और गवर्नर के स्टेटमेंट से ये न्यूज़ आई कि मेगा DSC आने वाला है। बस यही चर्चे आम हो रही कि मेगा DSC आने वाला है, मेगा DSC आने वाला है। क्या ये मेगा DSC से उर्दू मीडियम का फ़ायदा होगा? क्योंकि BRS गवर्नमेंट में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें उर्दू मीडियम के लिए ओपन कैटेगरी में 0 पोस्ट रखे गए थे, जबकि SC ST के लिए पोस्ट दिए गए थे। लेकिन हमारे उर्दू मीडियम्स SC ST में नहीं आते, जिसकी वजह से वो पोस्ट रिज़र्व रखे जा रहे हैं और ओपन कैटेगरी में पोस्ट को फिल नहीं किया जा रहा। तो हम लोग की ये डिमांड है, अकॉर्डिंग टू माइनॉरिटी डिक्लेरेशन प्रॉमिस करी थी कि उर्दू मीडियम के लिए स्पेशल DSC देंगे, तो अब मेगा DSC आने वाला है। सप्लीमेंट्री नोटिफिकेशन के अपडेट्स आ रहे, तो हम लोग की बस यही डिमांड है कि उर्दू मीडियम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट दिए जाए ओपन कैटेगरी में, क्योंकि पोस्ट ना होने की वजह से SC ST में फिल नहीं हो रहे, क्योंकि SC ST में उर्दू मीडियम एस्पिरेंट्स नहीं आते, तो उसमें पोस्ट फिल नहीं हो रहे और बैकलॉग में रह जा रहे, और ओपन कैटेगरी में 0 पोस्ट है। तो इसकी वजह से हमारे उर्दू मीडियम स्कूल सफ़र हो रहे और वहाँ के बच्चे ड्रॉप आउट हो जा रहे और प्राइवेट स्कूल का रुझान बढ़ जा रहा। तो और हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन भी बहुत वीक है और अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो अकॉर्डिंग टू दूसरे कमेटीज़ बहुत कम होता जा रहा। तो हमारी डिमांड ये है और हम कांग्रेस गवर्नमेंट से ये होप करते कि रेवंत सर क्या बोले थे, प्रजा पालन आएगा जो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो रहा, तो हम उनकी प्रजा है तो हमारा पालन कीजिए और जो भी सप्लीमेंट्री नोटिफिकेशन आने वाला है उसमें ओपन कैटेगरी में ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट दिए जाए। वी वांट स्पेशल उर्दू DSC, वी वांट स्पेशल उर्दू DSC। बीजेपी रुकन असेंबली इटेला राजेंद्र ने कहा कि रेवंत रेड्डी वज़ीर आज़म मोदी से मुलाकात करते हुए उन्हें ख़र्च देने की दरख्वास्त करते हैं। इटेला राजेंद्र ने एक प्रेस मीट के दौरान
सीएम रेवंत रेड्डी को निशाना बनाते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी 2 बार दिल्ली गए और वहां उन्होंने वज़ीर आज़म मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर ख़जाना से मुलाकात करते हुए खर्च मांगा। నేను కూడా ఆర్థిక మంత్రిగా పనిచేసిన అనుభవంలో చెప్తున్నా, 2 లక్షల రూపాయల రుణమాఫీ చేయాలంటే వాళ్ళ లెక్కల ప్రకారమే 34,000 కోట్ల రూపాయలని చెప్పిండు. ఒకటే దఫా అమలు చేయాలంటే సాధ్యమయ్యే పని లేదు. చూస్తూ ఉన్నాం, 2 సార్లు పోయిండు ముఖ్యమంత్రిగా ఢిల్లీకి. మీ దండం పెడతాం, మాకు అప్పులు ఇవ్వండి, మా దండం పెడతాం, అప్పులు ఇవ్వమని చెప్పి కోరుతున్నారు. అమిత్ షా గారిని కలిసిండ్రు, ప్రధానమంత్రి గారు కలిసిండ్రు, ఆర్థిక మంత్రి గారిని కలిసిండ్రు. కానీ ఎట్లా పడితే అట్లా, ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు, ఎంత పడితే అంత అప్పు తెచ్చుకునే వెసులుబాటు ఉండదు. నీ జిఎస్డిపి మీద ఆధారపడి, గతంలో తీసుకున్న రుణాల మీద ఆధారపడి రుణం ఇస్తే తప్ప అంతకంటే ఎక్కువ ఇచ్చే ఆస్కారం లేదు. खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानकारी। रियासत तेलंगाना से रुकन राज्यसभा के तौर पर मुंतखब होने वाले अनिल कुमार यादव ने आज अपने अहल खाना के साथ सीएम रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए आशीर्वाद लिया। इस मौके पर सीएम रेवंत रेड्डी ने उन्हें रुकनीत का सर्टिफिकेट हवाले किया। इस मौके पर दीगर कांग्रेस कायदीन भी देखे जा सकते हैं। टीएसआरटीसी ने हुकूमत के साथ मेडारम यात्रा के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। ये बात टीएसआरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सजनार ने कही है। उन्होंने बताया कि अकीदतमंदों की सहूलत के लिए 6000 खुसूसी बसें चलाई जा रही हैं। कोई भी आरटीसी बसों में सफ़र करके महफूज तरीके से मंदिर के दर्शन कर सकता है। చారిత్రాత్మక మేడారం జాతరకు టీఎస్ఆర్టీసీ అన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మనము గతంతో పోలిస్తే ఈసారి మనము దాదాపు 6000 బస్సెస్ని మనము కేటాయించడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఈసారి మహాలక్ష్మి పథకం ఉండడంతో ఎక్కువ మహిళలు, ఆడపిల్లలు, థర్డ్ జెండర్ వాళ్ళు వస్తారని చెప్పి మనము అంచనాతోనే ఈసారి మన బస్సెస్ కావచ్చు, క్యూ లైన్స్ కావచ్చు, పార్కింగ్ ఫెసిలిటీస్ కావచ్చు, అకామిడేషన్ ఫెసిలిటీస్ కావచ్చు, అన్నీ కూడా మనం ఎక్కువ చేయడం జరిగింది. సో ప్రజలందరూ కూడా ఈసారి సమ్మక్క సారలమ్మ జాతరకు పెద్ద సంఖ్యలో వచ్చేసి ఆశీస్సుని పొందాలని చెప్పి కోరుతున్నాను. అదేవిధంగా అక్కడక్కడ కొన్ని బస్సెస్ మనము విడ్రా చేయడంతో కొంత బస్సెస్ కూడా తక్కువ ఉండొచ్చు. ప్రజలందరూ కూడా మా డ్రైవర్సు, కండక్టర్సు, మా సిబ్బందితో కూడా కోఆపరేట్ చేయాలని చెప్పి నేను మరీ కోరుతున్నాను. ఈ జాతర వచ్చే భక్తులకు నేను తెలియపరిచేది ఏమంటే, మన బస్సెస్ ద్వారా వస్తే, మా బస్సెస్లో ప్రయాణిస్తే వాళ్ళు గద్దె దగ్గర దాకా పోవచ్చు. ప్రజలందరూ కూడా కోరుతున్నాను, మా టీఎస్ఆర్టీసీ బస్సులో ప్రయాణించి మీరు చాలా సంతోషంగా, సంభ్రమంగా మన దర్శనం చేసుకొని మీ తిరుగు ప్రయాణం మా బస్ ద్వారా పోవచ్చు. शहर हैदराबाद के बंडलागुड़ा में वाक़ साउथ जोन रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस के अहाते में 4 शंबे की सुबह आग लगने का वाक़या पेश आया। आग लगने से 2 टाटा एस गाड़ियां जल गईं। मुकामी ट्रैफिक अमले ने आग देखकर फौरी आग पर काबू पाने में मदद की। इस वाक़े की इत्तला पर जॉइंट कमिश्नर ऑफ ट्रांसपोर्ट सी रमेश ने आरटीओ ऑफिस का दौरा करते हुए जायज़ा लिया। इस मौके पर आरटीओ ने मीडिया के सवाल पर कहा कि बंडलागुड़ा आरटीओ ऑफिस के इर्द गिर्द हिफाजती दीवार तामीर की जाएगी और इस तरह के हादसे को रोकने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। इधर 2 गाड़ियों को फायर हुआ बोल के मालूम हो के आके विज़िट करें। तो इधर वो 2 टाटा एस को कोई आग लगाए, पुलिस भी कंप्लेंट करे हम। इनफैक्ट पुलिस कोऑपरेशन से मालूम हुआ, अपने पुलिस वाले और अपने लोग पूरा मिल के वो फायर को कंट्रोल करे। लकीली अगर दूसरे गाड़ियों को स्प्रेड होगा तो मुश्किल होता था। वो कंपाउंड के बारे में डिस्कस करें हम। वो कंपाउंड के लिए आरटीओ साहब को मैं इंस्ट्रक्शंस दे दिया टू फर्निश एन एस्टिमेट। उसके एस्टिमेट बना के కాంపౌండ్ बनाने के लिए सोच रहे हैं। ఈరోజు 2 బండ్లుకి టాటా ఎస్లకు ఫైర్ రావడము, మంటలు అంటుకుని మొత్తం కాలిపోయినాయి. ముందు ఫ్రంట్ పార్ట్ మెజారిటీ అంతా. ఇది చాలా బాధాకరం. సో ఇట్లాంటి ఇన్సిడెంట్ జరగకుండా రేపు పొద్దున ఇలాంటి జరగకుండా మనం సెక్యూరిటీ టైటన్ చేయడానికి ఈ కాంపౌండ్ వాల్ చుట్టూ కూడా కట్టడానికి నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది.
సో ఈ డిస్ప్యూట్ ఉన్న ఏరియా కూడా పక్కన పెట్టేసి మిగతాది ప్రొటెక్ట్ చేయాలని మేము డిసైడ్ చేసుకున్నాం. आरमूर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सदर मोहम्मद ज़हीर अली की क़यादत में एक वफ़द ने म्युनिसिपल कमिश्नर से मुलाकात करते हुए एक तहरीरी याददाश्त हवाले की। बाद-ए-आज़म मोहम्मद ज़हीर अली ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हर साल की तरह इस साल भी माह रमज़ान के दौरान मसाजिद के पास स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब, साफ़ सफाई, बिला वफ़ा बरक़ी व पानी की सरबराही के साथ साथ रमज़ान के महीने में रात देर गए बाज़ारों को खुला रखने से मुताल्लिक़ नुमाइंदगी की गई, जिस पर म्युनिसिपल कमिश्नर ने मुस्बित रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। इस मौके पर खालिक, शेख नाजिम, अब्दुल मतीन, मोहम्मद असर, सलमान, अकबर, अनीस, ज़ोहेब व दीगर मौजूद थे। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर हम आरमूर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से म्युनिसिपल कमिश्नर आरमूर से मुलाकात किए और म्युनिसिपल कमिश्नर आरमूर यहाँ पर नए ट्रांसफ़र होकर आए हुए हैं, उनका खैर मुक़द्दम भी किया गया और साथ ही साथ हर साल की तरह इस साल भी शब बारात और रमज़ानुल मुबारक की आमद के मौके पर जिस तरीक़े से हर साल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से नुमाइंदगी की जाती है कि मसाजिद के अतराफ़ व अकनाफ़ साफ़ सफाई के इंतज़ामात और ख़ासकर जितने भी मुस्लिम क़ब्रस्तान हैं उन क़ब्रस्तानों की साफ़ सफाई और एक महीने तक रमज़ान के महीने में मसाजिद के पास जो फोकस लाइट लगाए जाते हैं उसके लिए नुमाइंदगी, रोशनी के इंतज़ामात, साफ़ सफाई के इंतज़ामात, ब्लीचिंग पाउडर के इंतज़ामात और बिलखुसूस जिस तरीक़े से इस वक्त मच्छरों की अफजाइश ज़्यादा हो रही है, मच्छरों को मारने के लिए दवा का इंतज़ाम करने की बात की गई है और म्युनिसिपल कमिश्नर साहब से ये मुतालिबा किया गया है कि वार्डों के अंदर कंटिन्यू एक महीने तक जो बल्दिया की गाड़ी होती है, क्योंकि रमज़ान के महीने के अंदर फ्रूट्स वगैरह का ज़्यादा वेस्टेज निकलता है, तो एक महीने तक कंटिन्यू जितने भी माइनॉरिटी वार्ड से वहाँ पर खुसूसी गाड़ियाँ लगाकर कचरे की निकासी को अमल में लाया जा सके, इस पर बात की गई है। म्युनिसिपल कमिश्नर साहब ने तयक़ुन दिया है कि रमज़ान के महीने में साफ़ सफाई के बिल्कुल इंतज़ामात का जायज़ा लिया जाएगा और उस पर अमल किया जाएगा और जल्द से जल्द साफ़ सफाई के इंतज़ामात पर काम किया जाएगा। आरमूर मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की हैसियत से विवेकानंदा रेड्डी ने ओहदे का जायज़ा हासिल कर लिया। इस मौके पर उन्होंने आरमूर की आवाम से अपील की कि वो गाड़ी चलाने के दौरान तमाम दस्तावेज़ात अपने साथ रखें, बगैर हेलमेट गाड़ियां ना चलाएं। उन्होंने वालिदैन पर जोर दिया कि वो नाबालिग बच्चों को गाड़ियां ना दें। उन्होंने इंतबाह देते हुए कहा कि ट्रैफिक क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम विवेकानंद रेड्डी, मैं मंचिरियाल से इधर आरमूर मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर तबादला होकर आया हूँ, कल ही चार्ज लिया था। तो मेरा गुजारिश आप सबसे रिक्वेस्ट क्या है बोले तो बगैर हेलमेट के टू व्हीलर हम आपको चलो। क्यों बोले तो जितने भी एक्सीडेंट्स टू व्हीलर के हो रहे हैं 100 एक्सीडेंट्स में 80 डेथ्स जो है हेड इंजरी से हो रहे हैं। दैट इज़ बिकॉज ऑफ हेलमेट नहीं पहनने की वजह से। और दूसरी बात माइनर आजकल पेरेंट्स बच्चों को गाड़ियाँ दे रहे, दयచేసి तो मेरा रिक्वेस्ट है गाड़ियाँ मत दो माइनर्स को। आजकल कानून ऐसा आया अगर माइनर गाड़ी चलाया पकड़ा गया तो पेरेंट्स को जेल होने की चांस है, इसलिए ज़रा आप ये रहना। और बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के, बगैर फिट कंडीशन गाड़ी के, बगैर कागज़ के गाड़ी मामले में गाड़ी सीज हो जाती, आपका लाइसेंस सस्पेंड हो जाता और पॉइंट सिस्टम भी है, आपको ज़िंदगी में फिर बाद में लाइसेंस भी मिलने के चांसेस कम हो जाते और जेल भी होता। तो इसलिए सब लोगों से रिक्वेस्ट है आप सब कागज़ ठीक ठाक रखिए, लाइसेंस लेके रखिए। आरटीए के तरफ से आरटीए के पूरे सर्विसेज जो है आपको ऑनलाइन में अवेलेबल है, तो हर कोई आप घर से ही आप ऑनलाइन में करके कर ले सकते, उधर इधर जाने का ज़रूरत नहीं, पैसे वेस्ट करने का ज़रूरत नहीं। अगर आपका कुछ डाउट है वी आर अवेलेबल टू सर्व यू, तो आप इधर आ सकते, आपके लिए हम हैं, आपके सेवा में है। थैंक यू वेरी मच।
आदिलाबाद के समाजी कारकुन नुसरत खान ने बाज़ाब्ता एनसीपी कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। नुसरत खान को रियासती अक़लियती सेल का नायब सदर मुंतखब किया गया है, जिस पर नुसरत खान ने पार्टी आला क़यादत से इज़हार तशक्कुर किया और अवामी खिदमत का अज़्म ज़ाहिर किया। इस मौके पर निज़ामाबाद ज़िला सदर अब्दुल अलीम, निर्मल सदर मसूद बेग व दीगर मौजूद थे। मैं नुसरत खान, जनता ऑटो यूनियन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। मैं आदिलाबाद से प्रेसिडेंट का काम कर रहा हूँ। एनसीपी पार्टी से मेरे को तेलंगाना का स्टेट वाइस प्रेसिडेंट माइनॉरिटी का दिए। हमारे पाशा भाई की सरपरस्ती में सदारत में जो है सो आज मसूद भाई को निर्मल डिस्ट्रिक्ट का माइनॉरिटी प्रेसिडेंट बनाए। बहुत खुशी की बात है ये कि जो है सो आज आला पैमाने पे काम करने को मौका मिल रहा कि जो है सो आज पाशा भाई, उनकी टीम, हमारे निर्मल के प्रेसिडेंट, निज़ामाबाद के प्रेसिडेंट साहब भी यहाँ पे मौजूद है, अलीम साहब, और जो है सो डिस्ट्रिक्ट बॉडी भी है यहाँ पे। इन सब मिल के काम करेंगे आला पैमाने पे इंशाल्लाह। जो है सो गरीबों के सुख में, दुख में, हर चीज़ में जाके जो है सो उनकी हर तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ समझेंगे। किसी को कोई तकलीफ़ नहीं, वैसा काम करेंगे। ये पार्टी का पोस्ट है, कोई दूसरा पोस्ट नहीं है। पार्टी से काम करना है इंशाल्लाह, आले पैमाने पे काम करेंगे। और ये नॉमिनेट पोस्ट नहीं है, गवर्नमेंट पोस्ट है ये। इसके अलावा जो है सो पब्लिक के रहनुमा बन के जो चल रहे हैं यहाँ पे हमारे मसूद साहब की कितनी भी तारीफ़ करें तो कम है, क्योंकि हर किसी के सुख में दुख में रात के 2 बजे भी फ़ोन आया तो उठ के भागने वाली शख्सियत है ये मामूली शख्सियत नहीं है। इनको मैं यहाँ पे रह के 40-45 दिन से आजमा रहा हूँ, देख रहा हूँ। उसके बाद में जो सो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट साहब को ये बात कान पे डाल रहा हूँ, उन्होंने यहाँ पे आके उनकी जो सो हिम्मत अफजाई कर रहे, उनको पोस्ट दे रहे, और जो सो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में टिकट भी देंगे और जो सो उनसे काम भी लेंगे और पब्लिक के जो सो रहनुमा बनेंगे। आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी वार्ड सुदूर मोहम्मद आबिद, मोहम्मद शोएब, फिरदौस खान और दीगर ने नए म्युनिसिपल कमिश्नर के तौर पर अपने ओहदे का जायज़ा हासिल करने वाले मोहम्मद क़मर अहमद से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने गुलदस्ता पेश किया और शालपोशी के ज़रिए तहनीत की। इस दौरान उन्होंने कमिश्नर को आदिलाबाद के मुख्तलिफ वार्डों के मसाइल पर तवज्जो दिलाई। मैं मोहम्मद आबिद, क्रांतिनगर वार्ड नंबर 21 कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट, और मोहम्मद शोएब वार्ड नंबर 28 कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट, और फिरदौस खान वार्ड नंबर 16 कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट, और आबिद भाई, आज हम लोग आदिलाबाद कमिश्नर साहब से मुलाकात करें और करने के बाद हम साहब से ये गुजारिश करते हैं कि आवाम के मसले मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए और आदिलाबाद के तरक्की को मद्देनज़र रखते हुए आदिलाबाद का डेवलपमेंट किया जाए। ज़िले निर्मल के शहर भैंसा में वाक़ बरखी दफ्तर में माह रमज़ान और मौसम गर्मा के पेश नज़र सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ऑपरेशंस निर्मल JR चौहान ने जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया। इस इजलास में आला अहदेदारों ने शिरकत की। बाद-ए-अज़ां सुपरिटेंडेंट इंजीनियर JR चौहान ने BVN के नुमाइंदे मोहम्मद रब्बानी से बात करते हुए इजलास की तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। ऐसा शहर जैसा कि एक निर्मल के करंट डिपार्टमेंट के हेड ऑफिसर आए हैं और तमाम E और D को लेके मीटिंग कर रहे हैं। अभी आज मीटिंग हमारे रिसेंटली मेरे को आज हमारे डिप्टी CM साहब VC हुआ था वीडियो कॉन्फ्रेंस, उसके ताल्लुक से क्या वो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए कि अपने पास सरप्लस करंट है, अपने तेलंगाना हुकूमत में सरप्लस करंट है, उसके ताल्लुक से हमको इंस्ट्रक्शन दिया गया अगले समर में जो भी कुछ भी प्रॉब्लम है, ओवरलोड है, कुछ भी है, सब सॉल्व कर देना और पब्लिक को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुए जैसा देखना, उनका इंस्ट्रक्शंस है। हमारे लोगों को मैं ये मीटिंग उसी के वास्ते डाले कि फ्यूचर में कुछ भी रहो, अपनी ये 2-3 महीने अपने को आगे रमज़ान भी आ रहा और अपने को इधर अभी क्या चल रहा पूरा, उसके लिए कुछ भी प्रॉब्लम है तो हम लोग पूरे हर तरीक़ा से, अभी हम तरोड़ा में थोड़ा लोड था उसको AITM में ट्रांसफार्मर लगा दिए इमीडिएट। जो हाल ही में कुछ दिन पहले जो भैंसा निर्मल चौरस्ते पे काश्तकार ने धरना किया कि हमारा करंट कट कर दिए, हमें करंट डिपार्टमेंट वाला ऐसा प्रॉब्लम्स दिए, वो काश्तकार जो परेशान होकर जो धरना करे सर, और सारा धरना जो पूरे तेलंगाना में एक गलत मैसेज जा रहा है कि करंट वाले हमारे साथ ऐसा कर रहे, उसके बारे में कुछ वो क्या हुआ, एक परसों 19 के शाम में कुछ ये सबस्टेशन में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, उस ताल्लुक से क्या हुआ बोले तो वो लाइन में प्रॉब्लम हुआ था, इधर सबस्टेशन में भी प्रॉब्लम था। यहाँ लोकल में कोई बड़े लोग आए थे, कुछ भी राजकीय नायक लोग, असम CM तो भी था,
तो उनको उनको एलसी नहीं देते हुए हमारे यही ने क्या किया, थोड़ा बाद में देंगे, सुबह करेंगे बोल के, मगर उनको घरों को करंट कट नहीं हुआ, कट हुआ। सर्विस देने का क्या है बोले तो 30 मीटर पे दे सकते, 90 फीट तक हम लोग वायर से दे सकते, 30 मीटर। उससे ज्यादा अगर 5 मीटर इधर 2-3 मीटर ज्यादा रहे तो भी देते हम लोग, मगर उससे ज्यादा रहे तो पोल लगाना पड़ता। माफ के हिस्से में हम लोग अभी 7 तारीख से कल 20 तारीख से पूरा सर्वे हो गया। हमको ऊपर से ऑर्डर था सर्वे करो, FSC कार्ड, फूड सिक्योरिटी कार्ड वाले कितने हैं और कार्ड नहीं है सो लोग कितने हैं, वो पूरा हम डाटा ले लिए, सबमिट कर दे। ऊपर से उसका इंस्ट्रक्शन आएगा, उसके हिसाब से हम लोग उसको 200 यूनिट तक माप मिलेगा। शहर हैदराबाद के राजेंद्र नगर इलाके पिल्लर नंबर 254 पर वाक़े मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जारी मुफ्त मेगा हेल्थ कैंप में सैकड़ों की तादाद में मरीजों ने शिरकत करते हुए इस्तेफादा किया। बता दें कि इस मुफ्त मेडिकल कैंप का आगाज़ 19 फरवरी से हुआ, जो 24 फरवरी बरोज़ हफ्ते तक जारी रहेगा। हर दिन यहां पहुंचने वाले मरीजों का माहिर डॉक्टर्स की जानिब से चेकअप करते हुए दवाइयाँ दी जा रही हैं। मुख्तलिफ अमराज के अलावा आँखों का भी मुफ्त मुआयना और ज़रूरत के मुताबिक ऐनकें भी मुफ्त दी जा रही हैं। डॉक्टर हिदायत उल्ला ने राजेंद्र नगर और आसपास के लोगों को यहां शिरकत करते हुए इस मुफ्त मेडिकल कैंप से इस्तेफादे की ख्वाहिश की है। आदिलाबाद की मशहूर मारूफ दरगाह हज़रत सैयद सिराजुद्दीन औलिया अल मारूफ राजन शाह वली बाग सवार रहमतुल्लाह अलैह चांदा शरीफ के सालाना उर्स शरीफ का 20 फरवरी बरोज़ मंगल की रात इख्तिताम अमल में आया। 18 फरवरी को महफिल समा और 20 फरवरी को इख्तिताम के मौके पर बड़े पैमाने पर महफिल ख़व्वाली का एहतमाम किया गया, जिसमें मशहूर ख़व्वाल इसरार निज़ामी हैदराबादी और जुनैद सुल्तानी उत्तर प्रदेश ने शिरकत करते हुए कलाम सुनाया। इसके अलावा रियासती अक़लियती कमीशन रुकन मोहम्मद अत्थरुल्ला, DCCB चेयरमैन A बोजा रेड्डी, बल्दी वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी, आदिलाबाद हज सोसाइटी सदर मोहम्मद शाहिद अहमद तवक्कल, टाउन सदर मजलिस नज़ीर अहमद, कांग्रेस कायदीन, शहरियान आदिलाबाद और ज़ायरीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। सीएम रेवंत रेड्डी ने सियासत से क़त्ए नज़र हैदराबाद की तरक्की के लिए KCR की तारीफ। CII तेलंगाना की तरफ से तालीम, हुनरमंदी की तरक्की, कारोबारी मौक़े के मौजू पर मुनक़्क़िदा कॉन्फ्रेंस से किया खिताब। वज़ीर ख़ारजा जयशंकर रूस में फंसे 3 हिंदुस्तानियों को बचाने के करे इक़दामात। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की अपील, कहा एक एजेंट ने धोखा देकर तीनों को आर्मी सिक्योरिटी हेल्पर के तौर पर भेजा था। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने की कांग्रेस पर तनकीद, पूछा कांग्रेस हुकूमत 6 जमानतों को कब से करेगी नाफिज। हैदराबाद रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने किया हल्के असेंबली याकुतपुरा का दौरा। 2 करोड़ 35 लाख रुपए के MP फंड से मुख्तलिफ तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन के ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। तकरीब में डिप्टी CM भट्टी विक्रमार्का, कांग्रेस अरकान असेंबली, मुशीर तेलंगाना हुकूमत मोहम्मद अली शब्बीर के अलावा दीगर ने की शिरकत। स्पेशल उर्दू DSC, मेगा DSC मुनक्किद करने का मुतालबा। उर्दू मीडियम के ट्रेंड असातिज़ा ने डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन के दफ्तर पर किया एहतजाज। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।